students and welcome back to Shore. Okay, today we are going to study rules of image formation by convex lens. Okay, so let's begin with we are studying rules of image formation. Rules of image formation by a convex lens. Okay, we will start with this topic and then later on we will find out what are the different type of images formed by a convex lens when object is placed at different position. Okay, so rule number first is very simple. Rule number first is whenever any light ray is coming parallel to principal axis, then after passing through the lens, it passes through the focus on the other side of the lens. Okay, so first rule number is any light ray coming parallel to incident, coming parallel to the principal axis, passes through focus of a lens after refraction. ओके, इसका मतलब क्या है? अब हम इसको रे डायग्राम से क्लियर करेंगे. ओके, ये समझिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस कॉन्वेक्स लेंस की. ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. फर्स्ट रूल ये कहता है कि ऐसे करके अगर कोई रे आ रही है तो ये आप रे देख रहे हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, सो ये रे पैरेलल आने के बाद अदर साइड पे फोकस से पास होती है. ये फोकस है. ओके, ये इस लेंस का फोकस है. पैरेलल रे आएगी, फोकस से पास होगी. दिस इज रूल नंबर फर्स्ट. ओके, कम टू रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर सेकंड सेज एनी रे इंसिडेंट towards the optical center of any convex lens moves undeflected and it does not change its path. Okay, so rule number 2 is any light ray incident on optical center of a convex lens moves without changing its path. Okay, or in other words we may say it will move straight. Okay, and with the diagram how it will look like, this is principal axis of this convex lens that I am drawing. This is our convex lens and this is principal axis. This is optical center. Okay, this is optical center AO. Okay, and it is incident ray. When it will incident at optical center, then it will move straight. Okay, it will not deflected anyhow. Okay, now come to rule number 3. Rule number 3 is any incident ray which is incident on focus of the convex lens, it will move parallel. Okay, after refraction. Any light ray incident from focus on the lens becomes parallel to the principal axis after refraction.
refraction. Okay, this is rule number 3. How it will look like? Drawing ray diagram. This is principal axis of this lens that I am drawing. Okay, ये लेंस है. ओके, और ये इस लेंस का लेफ्ट साइड वाला फोकस है. लेफ्ट साइड वाले फोकस को सेकेंडरी फोकस भी बोलते हैं. एंड लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम दिस फोकस लाइक दिस. ओके, this is focus f dash. Light ray is incident like this. Then it will become parallel to the principal axis. It will become parallel to principal axis. Okay, these are the rules for image formation. These are 3 rules and I am revising and recapping this. First rule is any ray which will be incident parallel to principal axis. This is principal axis, parallel to principal axis, incident on this lens, it will move from focus on the other side, which is called principal focus also. Okay, rule number 2 is any light ray incident on optical center, it will move undeflected. Okay, and rule number 3 is any light ray which will be incident from the focus of the convex lens will move parallel to the principal axis after refraction. These are the 3 rules. Very simple. You must remember this. Okay. Now I am erasing this and I am moving forward to the topic number 2, which is different type of image formation by a convex lens. Okay. What are the types of image formation when object is placed at different position? So let's see. Okay. Now topic is different type of image formation, types of image formation. By a convex lens. Okay, so students, to learn different type of image formation through a convex lens, it is important you must remember all the 3 laws that I told you just before. Okay, जो मैंने तीनों लॉज आपको बताए इमेज फॉर्मेशन के लिए, उनको याद रखना जरूरी है क्योंकि उनके बिना हम रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. So whenever ray diagram is being drawn, then you must use that all rules. Okay, so let's see. जब हम ऐसे देख रहे हैं, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो हम अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं और उनका इमेज फॉर्मेशन हमें याद रखना होता है और देखते हैं कि इमेज उनकी कैसी फॉर्म होगी. तो हम स्टार्ट करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखी हुई हो तो उसकी कैसी इमेज फॉर्म होती है. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से और लेंस के धीरे धीरे पास लाएंगे. फर्स्ट पोजीशन विल बी एट इंफिनिटी, देन वी विल ब्रिंग अ लिटिल बिट क्लोजर एंड द पोजीशन विल बी बियॉन्ड 2f. ओके, 2f पर रखेंगे, 2f के बियॉन्ड रखेंगे, देन 2f पर रखेंगे एंड सो ऑन. इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्लोजर लेकर आएंगे और उसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे. सो वी बिगिन विद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ओके, सो नंबर फर्स्ट इज when object is at infinity. Is at infinity. Okay, so अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है और उसकी कहां पर इमेज बनाता है वो हम देख रहे हैं. सो इमेज विल बी, आई एम राइटिंग इन दिस हेडिंग, image will be at focus. Okay, focus f. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स लेंस से वो फोकस पे इमेज फॉर्म होगी. ओके, और उसका नेचर क्या होगा? नेचर विल बी, नेचर ऑफ the image will be, it will be real and inverted. कोई कॉन्वेक्स लेंस सारे केसेस में किसी ऑब्जेक्ट की
इमेज जो बनाता है वो नेचर की इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ही बनाता है। केवल एक केस में कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड एंड रियल इमेज नहीं बनाता, लास्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को बहुत पास ले आएंगे कॉन्वेक्स लेंस के, तब ऑब्जेक्ट की इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी, अदरवाइज सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये याद रखने वाली बात है आपको, है ना। देन नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको जो मैंने बात बताई उसको आपने ध्यान रखना है। जब ऑब्जेक्ट को लास्ट में हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तभी ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, अदरवाइज सारे केसेस में ऑब्जेक्ट की इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। ये चीज सेम रहेगी, केवल लास्ट केसेस में ये बदल जाएगी जब बहुत पास हम ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। देन इमेज ऑफ द नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड व्हाट विल बी इट्स साइज, its size will be very diminished, okay, and it will be very small, or we say very diminished, okay, very diminished. Now come to its ray diagram, okay। अब हम इसका रे डायग्राम देख रहे हैं और रे डायग्राम में जो मैंने रूल्स आपको बताए थे वो फॉर्म होते हैं, ओके, वो यूज होंगे। तो कैसे होगा, लेट्स से पहले हम ऐसे करके कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ओके। कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए आपको पहले ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ ड्रॉ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस विल बी लाइक दिस, ओके। एंड फॉर वॉचिंग the object, for imaging the object to be at infinity, we take two rays, two parallel rays। एक रे हम ऐसे करके इंसिडेंट करते हैं like this, okay, this will be a ray, okay, and another ray we are taking parallel to this, okay। These are the two rays which are coming parallel from infinity। तो infinity से दिखाने के लिए ऐसे करके infinite हम डैश डैश शो करते हैं। यहाँ कहीं पे बहुत बड़ी इमेज, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, लार्ज ऑब्जेक्ट होगी, सो वी आर राइटिंग दिस इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय लेट्स से ए बी, ओके। देन दीज टू रे, फर्स्ट रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेड एंड अनदर रे विल कन्वर्ज अ लिटिल बिट लाइक दिस, ओके। So these two rays will meet somewhere here, okay। So this will be focus, the image will be at focus and I have denote this like this, and object we may say A dash B dash, okay। So this is focus, this is how the image will be formed and the image is very diminished, diminished means very small in size। This is in first case, the image will be formed by this convex lens, okay। Now move forward and we are coming to case number 2। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को अगर लेंस के पास लेकर आते हैं तो ये इमेज इससे दूर होती है, यानी कि इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, फोकस। तो फोकस से दूर अब इमेज जाएगी, उसके साथ साथ इसका साइज बड़ा होता जाएगा। केवल यहाँ पे इस पोजीशन में हम ये भी कह सकते हैं वेरी डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज भी लिया जा सकता है। पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसकी फोकस पर बनती है। अब हमें दो बातें ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इमेज दूर जाएगी और धीरे धीरे दूर जाने पे इसका साइज लार्ज होता जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पैटर्न फॉलो होगा। सो नंबर 2 पोजीशन इज ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 पोजीशन इज व्हाट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f, मतलब हम 2f डिस्टेंस के बियॉन्ड ले रहे हैं। नाउ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, यानी कि इसके लेंस के लेफ्ट साइड में जो 2f डिस्टेंस होगी उसके और इनफाइनाइट के बीच में कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज विल बी फॉर्म्ड, तो देखिए मैंने बोला कि इमेज अब इधर की साइड शिफ्ट होगी, तो इधर की साइड किस जगह पे शिफ्ट होगी,
it will be between f and 2f. So image will be formed between f and 2f on other side. Okay, this you have to remember. Now what will be the nature? Nature मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि नेचर उसका सेम रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा हर केस में. So nature will be real and inverted. और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगी उसका साइज लार्ज होगा, बढ़ता जाएगा बट धीरे धीरे. इसका मतलब पहले वेरी डिमिनिश्ड था, अब थोड़ा सा बढ़ गया, देन इट विल बी डिमिनिश्ड इन साइज एंड साइज विल बी डिमिनिश्ड. ओके, डिमिनिश्ड साइज बनेगा. नाउ कम टू रे डायग्राम एंड आई एम ड्रॉइंग इट. रे डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस. पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हम लेंस ड्रॉ कर सकते हैं. वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ही लेंस आपको ड्रॉ करना है, अदरवाइज आपका रे डायग्राम रॉन्ग हो सकता है. ओके, एंड दिस इज सपोज एफ. ओके, एंड दिस इज सपोज 2f. ओके, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, समथिंग लाइक दिस. इट विल बी ए बी. ओके, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कहीं हमारा इधर की तरफ इसे f डैश 2f डैश बोलो और इसको बोल दिया हमने f एंड इट इज 2f. ओके, सो द इमेज विल बी फॉर्म लाइक दिस. एक रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई और सीधे निकल जाएगी लाइक दिस. ओके, मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से जब कभी भी कोई रे पास होती है तो वो सीधी पास हो जाती है. और एक रे हम लेंगे पैरेलल. ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और ये दोनों रेज जो है कहीं यहां पर जाकर इंटरसेक्ट करती है. तो आप देख सकते हो, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? ये कहीं जाकर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, लाइक दिस. ओके, और इस तरीके की इमेज यहां पर फॉर्म्ड होती है. It will be A dash B dash. Okay, this is how image will be formed in case when object is placed beyond 2f. तो 2f से beyond हमने रखा, f dash क्यों लिखा है? Because this is primary focus, this is secondary focus. And secondary focus पर आने के बाद object की image इस तरीके से form होगी. It will be smaller in size in comparison to the object and it will be between f and 2f. Okay, I have written this. Now come to third case. Okay, अब हम तीसरे केस पर आते हैं. अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आ रहे हैं. तो अभी हमने AB को ऑब्जेक्ट को रखा है beyond 2f. Now we will take the object at 2f exactly. So we are putting the object is at 2f. तो हमने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम और पास लेकर आएंगे इमेज और दूर शिफ्ट होती जाएगी और उसका साइज बड़ा होता जाएगा. तो इस बार दूर शिफ्ट कहां पर होगी? ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो 2f पर ही बनेगी. सो इमेज विल बी, आई एम राइटिंग, इमेज विल बी एट 2f. इमेज विल बी एट 2f. ओके, and the size of the image will be equal size of the object and its nature will of course be, वो मैंने पहले ही बता दिया था, real and inverted होगा. So nature will remain same. It will be real and inverted. Real and inverted and its size will be equal to the object. Equal to the object. ओके, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की ही इमेज बनेगी. रे डायग्राम कैसा होगा? लेट्स सी दिस. रे डायग्राम के लिए आपने पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. वर्टिकल लाइन से लेंस ड्रॉ करना है, समथिंग लाइक दिस. प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे इस तरीके से और यहां पे होगा इसका लेट सपोज f डैश. ओके, and here will be f 2f. okay, and object will be like this.
ओके, तो ऐसे करके इसके लिए एक पैरेलल रे जाएगी और एक सीधी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये दोनों रेज कहीं यहां जाकर मिलेंगी। ओके, एंड इट विल बी इट्स एफ हेयर एंड इट विल बी एट 2f. This will be 2f on the other side. So you can see that the size of the object and image are same. It will be AB, object will be AB and it will be A dash B dash. Okay, this will be object, this will be image. On the other side we are getting equal size image. Okay, now move forward to the next rule or the next position. Now bringing object more closer, bringing object more close to the lens. Now the position, new position of the object will be between 2f and f. Okay, 2f dash we may say. Okay, we are not indicating in this dash. Okay, because these may also be considered to be focus. So we are only indicating beyond f dash. We are taking focus 2f. We are not denoting there the position of object dash. Okay, however we may indicate that with dash also, because the distance of f dash and f are same. That's why we are taking f only. Okay, it will not be wrong if we will denote this with dash as well. Okay, so new position is number 4. Object is between f dash or f and 2f. Object between f and 2f. Okay, so where will be the image? Image will be at the initial of this, at the starting of this. मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप क्लोजर लेकर आओगे इमेज दूर होती जाएगी। तो अभी इमेज हमारी कहां पर बनी थी? अभी लास्ट केस में इमेज हमारी बनी है जब हमने ये पर्टिकुलरली ये पोजीशन ली है कि 2f, ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो इमेज भी हमारी 2f पर बनी है। तो जब हम इन दोनों के बीच में लेंगे तो इमेज हमारी बियॉन्ड 2f चली जाएगी। ओके, सो इमेज विल बी बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। और जैसे जैसे साइज बढ़ा है ऑब्जेक्ट इमेज का, अब इक्वल साइज तक आ चुका है और इक्वल साइज के बाद इस बार एनलार्ज इमेज बनेगी, यानी कि लार्जर साइज इमेज we will get on the other side. Okay, and nature will remain same. What will be the nature of the image?